Okay, this is the second slide of today's class of IGNO BAG. Please mute yourself. Huh? Please wait. This is the second class of the IGNO. Yeah, this is the second. I can say that class of this day today, and it is known to you that our topic under discussion is tennis. We have already completed what is meant by tennis, types of tennis according to time, and types of tennis according to statement. And I have told you identification of tennis. I told you that for identification of tennis, we need two things. That is number one, helping verb and verb form. And we have already completed the verb form. We come to this conclusion that wherever we will see the first form, we can say that it is indefinite. Wherever we will see the third form, we can say that it is perfect. Wherever we will see the fourth form, we can say that it is continuous or perfect continuous. Is it clear to you? वो वेरी गुड क्वेश्चन. वो भी मैं करूंगा एक्सप्लेन आपको, क्यों नहीं. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. आफ्टर पोजिंग द क्वेश्चन म्यूट योर सेल्फ. जस्ट कम्स इको. हाँ, this is very good question. It is in my mind. I will explain this also to you. But please wait. For this, I have to explain something more. Okay. Now I will show you the slide once again. Is the slide visible? Hello. One second. One second. This is what happens with this. Please wait. I will share the slide with you. Is the screen now visible to you? Is it visible? Hello. Hello. Okay. Now, please mute yourself. Now, another thing, as I told you that for identifying of tennis, we need two things. That is verb form and helping verb. We have completed the verb form. Now, another thing is helping verb. In case of present indefinite, we use helping verb do or does. Do or does. दोनों नहीं. I do, does, eat food नहीं. एक ही. यानी कि I do eat food. With present indefinite, we use helping verb do or does. Does is used with he, she, it. Does is used with he, she, it. And do is used with other. By other, I mean we, you, they. Is it clear? Hello. Did is used with all. By all, I mean all nouns or pronouns. That means with he, with she, with my name Salim, with your name Leela, Sheila, or with you, with they. It is used with all. Will and shall. Shall is used with I and we. And will is used with other. I have already told you by other what I mean. You have to remember that sometimes we use will with I and we and shall with other. But that we will discuss in the models, not here. That will create confusion to your mind. Is it clear? Yes. In case of perfect, perfect indefinite, we use has and have. Has is used with he, she, it, and have is used with other. Other, I mean I, we, you, they. Had is used with all. That is with all nouns and pronouns. Will have and shall have. Where we use will, there we use will have. Where we use shall, there we use shall have.
continuous. Present continuous. Is, am, or. Is used with he, she, it. Am with I, and or with other. Past continuous. Was, where. Was is used with he, she, it, and where with other. Future continuous will be, shall be. Where we use will, there we use will be. Where we use shall, there we use shall be. Present perfect continuous has been, have been. Where we use has, there we use has been and have been. Past perfect had been. Future perfect will have been, shall have been. Is it clear? Hello. Huh. Yes. Please wait for this. That is not a question which will be. I will say you later on because I didn't know at this time myself. Who has given the tennis? Tennis has given by nobody. It is a linguistic persons who have told you. But still, I will search also. But this is not conceptual question. Huh. Is it is it clear to you now? हेलो. मैं कह रहा हूँ होता मैंने कहा क्वेश्चन अच्छा है. मैंने यहाँ से ही कहा मैं मुझे इस वक्त मालूम नहीं है मैं देखूंगा कोई बात नहीं है ठीक है. अब मैंने ये कहा है कि मतलब ये बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन है. आई अप्रिशिएट यू. मगर अब मैंने कहने का मतलब है मतलब इस वक्त अगर हम नहीं कहेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे लेक्चर पर नहीं पड़ सकेगा यही मेरे कहने का मतलब है. इज इट क्लियर टू यू? हाँ 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 कोई बात नहीं. 1 सेकंड. 1 सेकंड. 1 सेकंड. हाँ. Is the screen visible to you? हाँ. Now perfect continuous. Perfect continuous. I have told you that there is has been, have been. Present perfect continuous. Past perfect continuous, there is had been. Future perfect continuous, there is will have been, shall have been. Is it clear to you? हाँ. और अब आप कहेंगे सर आपने तो दो टेंसेस में कहा है फोर्थ फॉर्म दैट इज कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही कंसेप्ट यहाँ आपको मुझे क्लियर करना है. यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में और होता है सिंस एंड फॉर. सिंस एंड इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस देयर इज आल्सो सिंस एंड फॉर. इज इट क्लियर? हाँ. सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम. बाय पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कहाँ से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टार्टेड आवर क्लासेस सिंस 10 यानी कि बराबरी दिखा रहा है कब से. फॉर दिखा रहा है पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम तक. मिसाल के लिए अगर इस वक्त 11 है 10 बजे हमने क्लास स्टार्ट किया यानी कि एक घंटे से हम पढ़ते हैं. इज इट क्लियर टू यू? दैट मीन्स सिंस शोज एक्चुअल पॉइंट. फ्रॉम मंडे सिंस 2020 सिंस मॉर्निंग बराबर दिखा रहा है. सिंस 10 फॉर दिखा रहा है फॉर 2 years, for 2 weeks, for 2 hours. Is it clear? Yes. Yes. Now the last thing, and with this help, नहीं मेरी बेटी नहीं. प्रेजेंट और पास्ट का यहाँ कंसेप्ट नहीं है. मैंने कहा है सिंस हम यूज करते हैं दोनों होते हैं इस्तेमाल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर किसी के लिए. मगर सिंस हमें दिखा रहा है बराबर कहां से. मिसाल के लिए 10 बजे से 11 बजे तक. वेरी गुड कहां से. और पीरियड दिखाया है कितने टाइम तक. मिसाल के लिए 1 घंटे तक. इज इट क्लियर नाउ टू यू? ओके वेरी गुड. नाउ एनीबॉडी एनी डाउट टिल दिस टाइम? हेलो.
Any doubt to anyone? Okay. Now the last thing, and in this way you will now make the identification of tennis very clearly. Now this you have to remember only 3 rules, not more rules. Otherwise you have seen there are so many rules for the tennis which you have been taught by your teachers or which are written upon the books. But you have to remember here only 3 rules. Now the rules. I have told you that we need 2 things for identification of tennis. Which are they? Be quick. Which are they? Which are verb form and helping verb. Very good. प्लीज म्यूट योर सेल्फ क्विकली, फिर जल्दी जल्दी म्यूट करना होता है. हाँ, आप कुछ रूल्स हैं इनको याद रखना है. क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? इन केस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट, इन केस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड बट विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है. दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं. यहां तक समझ में आया? हेलो हेलो. ओके, बहुत आसान है. प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है. चलो यही तो हमने मान लिया. अब बात है सर अगर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल नहीं होगा, आप ही ने वहां कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड इस्तेमाल करते हैं, और आपने वहां कहा कि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि मैंने वहां कहा आपको हर किसी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म, हर किसी में, ये मैंने आपको कहा, फिर आपको मैंने वहां एक्सेप्शन भी कहा ही, मगर वहां मैंने आपको कहा कि हर किसी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म. सर अगर आप हर किसी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म और मतलब फिर मिसाल के लिए आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, ये कौन सा टेंस है? आई डू नॉट ईट फूड. हेलो, बहुत आसान है. क्या हुआ आपको? आप आप चार्ट पर नजर मारो, आपको खुद समझ आएगा. प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. चार्ट पर नजर मारो. मैंने कहा इंडेफिनिट वो होता है जहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ ईट है इसीलिए इंडेफिनिट. अब कौन सा इंडेफिनिट है? या हेल्पिंग वर्ब डू है इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट. अच्छा, आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, ये कौन है? जल्दी. आई डिड, डू मैंने नहीं कहा, मैंने डिड कहा है. या आई डिड ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड. आई डिड, डू मैंने नहीं कहा है. देखो चार्ट में कहाँ इस्तेमाल करते हैं डिड. मैंने आपको कहा सिग्नेचर उठाने के लिए. वेरी गुड, पास्ट में. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. यानी कि मैंने कहा हर किसी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ है ईट फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसलिए है पास्ट इंडेफिनिट. समझ यहाँ तक आया? हेलो, डाउट? हाँ, एक सेकंड डाउट अभी क्लियर होगा. अगर नहीं होगा फिर कहना. हाँ, अब बात है, अब मैंने यहाँ कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर खाली अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ. अब आप कहेंगे सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. ये असर्टिव सेंटेंस के 2 किस्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो पॉजिटिव होते हैं, मिसाल आई ईट, ये पॉजिटिव है. उसका नेगेटिव है आई डू नॉट ईट. इसका इंटरग्रेटिव है डू आई ईट. जो ये पॉजिटिव है, जो अफर्मेटिव है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं, न प्रेजेंट इंडेफिनिट में न पास्ट इंडेफिनिट में. अब आप कहेंगे सर फिर हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट है? उसके लिए एंड सेकंड फॉर्म इज यूज्ड विद द पास्ट इंडेफिनिट. उस वक्त अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको खाली अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब वहां होती है. समझ में आया या नहीं?
और क्या है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। वाइल एज इन प्रेजेंट इंडिफिनिट एस आर एस इज यूज्ड। हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एस और एस यूज करते हैं। कब करते हैं? विद द थर्ड पर्सन, जब थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही शी इट अगर होगा तो हम उस वक्त वर्ब के साथ एस या एस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के, ही ईट्स फूड, आई ईट फूड। शी टीचेस अस, दे टीच अस। समझ आ रहा है? हेलो। हाँ, जिसका पहले डाउट था उसका वो क्लियर हो गया है या अभी है? मेरी बेटी का किसी का डाउट था? हेलो। हो गया? मैंने कहा ना, मुझे मालूम था कि आपका डाउट क्या है। हाँ, आप बात है और एक। हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस है। नहीं नहीं नहीं, खाली सिंगुलर, सिंगुलर ही शी इट। एस आर एस इज सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी इट। इज इट क्लियर नाउ? ओके। हाँ। अनदर 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 रूल, वेरी वेरी इजी। बस यू हैव कंप्लीट द टेंस। अनदर इज, जैसे मैंने आपको कहा कि सेकंड फॉर्म दो जगह इस्तेमाल होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट हमने किया है, अब पास्ट परफेक्ट में देखेंगे हम कैसे इस्तेमाल होता है। इनके साथ पास्ट परफेक्ट, देखो पास्ट पास्ट हुआ है गुजरा, परफेक्ट हुआ है मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डबल पास्ट, क्योंकि उसमें दो काम होते हैं पास्ट में। यही यहाँ मैंने लिखा है, इनके साथ पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस आर परफॉर्म। पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं, मगर पहली एक काम उसके बाद दूसरा काम। आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा आपके कहने का। मिसाल के लिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये कल की बात है। यस्टरडे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। दोनों काम कल ही हुए थे, आप स्टेशन पहुंचे थे, ट्रेन चली गई थी। समझ आ रहा है? अब बात यह है, दोनों काम इकट्ठे नहीं होते, साइमल्टेनियस नहीं होते। पहले एक काम उसके बाद दूसरा काम। वहां मतलब पहली ट्रेन ही चली गई फिर आप पहुंचे। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, जो फर्स्ट वर्क होगी, मिसाल पहले ट्रेन चली गई है, उसके साथ थर्ड फॉर्म, जैसे हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप पहुंचे, ये कल की बात है, तो सेकंड के साथ, सेकंड वर्क के साथ सेकंड फॉर्म। समझ आया या नहीं? या मुझे फिर से कहना है? हेलो। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डायड, द पेशेंट हैड, व्हेन द डॉक्टर केम। ये पेशेंट बेचारा मर गया था, फिर डॉक्टर आया है। ये पास्ट, ये कल की बात है। दोनों कल हुए थे, मगर पहले पेशेंट ने ही मतलब या इस दुनिया से चला गया था, फिर डॉक्टर पहुंचा उसके पास। दोनों का पास्ट में है, मगर पहली एक उसके बाद दूसरी। जो पहली हुई है उसके साथ थर्ड फार्म, जो दूसरी हुई है उसके साथ सेकंड फार्म। समझ आ रहा है? हेलो। समझ आया? हाँ हाँ, चलो। अब बात है, ये मैंने आपको वहीं कहा है, ये थर्ड वाला। इन केस ऑफ ऑल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, सिंस एंड फॉर इज यूज्ड, सिंस इज यूज्ड पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मैंने वहीं कहा, तो यहाँ हमें ये डिस्कस करने का जरूरत नहीं। अब किसी ने पहले ही मुझे क्वेश्चन किया था, सर हमें कैसे मालूम चलेगा ये सेकंड फार्म है या थर्ड फार्म है? किया ना किसी ने? मिसाल के लिए प्लेड प्लेड प्लेड। हाँ, ये है गो एंड गॉन, उसके तो अलग है, वो तो हमें पता चलेगा, गो एंड गॉन। मगर अब सारे है प्ले प्लेड, प्लेड प्लेड प्लेड, या कट कट कट, पुट पुट पुट। यही था उसका क्वेश्चन, वो यही है, वो क्लास में ही है अभी। हेलो। वो अभी क्लास में है। हाँ, का क्वेश्चन यही था कि सर हम कैसे डिफरेंस करेंगे। बहुत जगह तो मतलब डिफरेंट है, वहां तो हम कर सके। मिसाल के लिए ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, और फिर गोइंग। मगर सर अब बात ये है, प्ले फर्स्ट फॉर्म प्लेयर प्लेयर, अब हमें कैसे पता चलेगा ये सेकंड है या थर्ड? काट 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 काट, सर ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट है सेकंड और थर्ड? यही था आपका क्वेश्चन।
वेरी गुड। नाउ लिसन, नाउ लिसन, नाउ लिसन, नाउ लिसन। फर्स्ट तब हमें पता चलेगा, जैसे आपको मैंने अभी कहा था, जब कोई हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होगा, जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होगा। आई कट द ट्री, दैट मीन्स आई कट द ट्री, यहाँ ये फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ कोई आई डू नॉट कट द ट्री नहीं है, आई विल कट द ट्री नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ आया? समझ आया? हाँ। सेकंड, सेकंड मैंने आपको कहा है, सेकंड मैंने आपको कहा है खालिस पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडिफिनिट में मैंने आपको कहा है खालिस अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि जब पास्ट इंडिफिनिट उस वक्त भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मगर वहां सेकंड फॉर्म होगी। समझ आ रहा है या नहीं? यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो और वो पास्ट दिखा रहेगा, ये कल की बात होगी, यस्टरडे की बात होगी, वहां सेकंड फॉर्म। या जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट में आपको कहा है कि वहां दो काम होते हैं, मैंने आपको कहा कि सेकंड फॉर्म खाली दो जगह इस्तेमाल होती है, या पास्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब पास्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट की बात होगी, मगर वहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जब दूसरी काम होगी, मैंने आपको कहा पास्ट पर में दो काम होते हैं, दूसरी काम जो होगी उस वहां आपको लगेगा। मिसाल के लिए मैंने आपको कहा व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन, सर ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड? रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट, मैंने यहां यूज किया है हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट का माने है थर्ड फॉर्म, क्योंकि रीचड में के साथ मैंने, हाँ प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि रीचड के साथ मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल किया। अगर मैं ऐसे करूंगा व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई हैव और हैड, व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन, अगर मैं ऐसे कहूंगा उस वक्त ये थर्ड फॉर्म है। अगर मैं कहूंगा व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन, उस वक्त ये थर्ड फॉर्म है। अगर मैं ऐसे कहूं व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, उस वक्त ये सेकंड फॉर्म है। समझ आ रहा है या नहीं? कंफ्यूजन क्लियर हो या कंफ्यूजन है? यस। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। वेरी गुड। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कहने में गलती हुई होगी, मे बी स्लिप ऑफ टंग मत हुई होगी। सेकंड वर्ड के साथ सेकंड फॉर्म, फर्स्ट वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म, मुझे मे बी स्लिप ऑफ टंग मत हुई होगी। आप समझ में आया? हाँ, अब वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले किया था, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, और फिर मैंने ये कहा ही इज ए बॉय। तो वहां पहले में हमने कहा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दूसरे में हमने कहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको याद रखना है कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्ट करता है मेन वर्ब। सम टाइम्स हेल्पिंग वर्ब एक्ट एज मेन वर्ब। कब? जब मेन वर्ब होगा नहीं। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं होगा तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब एक्ट करता है एज मेन वर्ब। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैंने कहा अभी ही इज ए बॉय, या ही इज ए गुड बॉय, या ही इज माई फ्रेंड, या ही इज माई स्टूडेंट। यहां इज के साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर होता है तो फिर फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए। ही इज माई स्टूडेंटिंग होना चाहिए ना। हेलो, समझ आ रहा है? कभी कभी सम टाइम्स हेल्पिंग वर्ब एक्ट्स एज मेन वर्ब। कब? जब मेन वर्ब होगा नहीं, तो उस वक्त हमें देखना है ये कौन सा टेंस है। आपको याद रखना है, वहां ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब, फिर ब्रैकेट में होता है बी बी बी। जो बी है, बी के फॉर्म में इज एम आर, इज एम आर, ये इज एम आर इसके प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। जैसे हमने कहा है वहां गो वेन गॉन, फर्स्ट फॉर्म। बी के फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकंड फॉर्म है वाज वाया, थर्ड फॉर्म है बीन। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? अब आपको उसी तरीके से देखना है। मिसाल और एक सेंटेंस, आई हैव ए पेन,
Which type of sentence it is? I have a pen or I have a car. अगर हम कहेंगे ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें हैव है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर इसको हम कंसिडर करेंगे परफेक्ट क्योंकि इसमें हैव है, मगर फिर तो थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए ना। फिर होना चाहिए आई हैव पेनर, आई हैव कार। यहाँ तो थर्ड फॉर्म है नहीं। उसका माने है यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब एक्ट हो रहा है मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब है नहीं। इसीलिए ये जो हैव और हैज ये फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म है हैड, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर होगा आई हैड ए पेन, वो पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया नहीं? Anybody any question? Anybody any question? Anyone among you any question? Okay, I hope that all of you have understood. You say yourself. Whatever I have taught you, it will be available on the YouTube. I will send with you. I will share with you also. It will be available on the YouTube. And I have my own channel whose name is Salim Saraj Academy SSA. I have already shared the link with you. 1 second. I have already shared the link with you. You can share that link with your friends, with your relatives, with your classmates also, because that will be helpful for you. There is the full information that you can share, and I have already discussed it there. I think that all the aspects of the grammar you can watch yourself and you can yourself see that have I discussed all the aspects of the grammar or not, that you can see yourself. But वो हम देखेंगे, मगर अकॉर्डिंग टू रूल इग्नोर के हिसाब से हमें संडे को ही देखना है, देना है क्लास। आई थिंक दैट इट इज टू मच टुडे। Thanks too much. Thanks, but